Good afternoon, my dear students. Today we are going to discuss a new chapters, motions of the earth. My dear student, as you are aware, in our solar system there are 8 planets, and all these 8 planets revolves around the sun. So each planet has the two types of the motions, that is the rotation and revolution. So in this sixth standard we are discussing about the earth. So today we are going to discuss about the two movements or two motions of the earth, that is rotation and revolution. Now, as earth has the two types of the motions or two types of the movement, the rotation and revolution, what is the importance of these two movements, means what is the importance of rotation and what is the importance of revolution. So due to the rotation our day and night forms, and due to the revolution our different seasons form. So in this chapter we are going to discuss about the two motions of the earth and what is the impact of these two motions on our life. We are going to discuss in this chapter. As we are going to discuss about the rotation and revolution, rotation cause the day and night and revolution cause the different season on the earth. Except this, we will also discuss about the summer solstice, winter solstice and the equinox. So my dear student, we are going to discuss in all these things through this chapter. Now, as the name indicate of this chapter is motions of the earth. My dear student, as you are aware, every day we notice that sun rises in the east and sets in the west. यानी कि हम हर रोज जो है ये अनुभव करते हैं कि सूर्य जो है ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन में आपका सेट हो जाता है. We are always conscious of apparent movement of the sun, but very little realize that the earth on which we live is constantly in motion. यानी कि हम क्या करते हैं, हमको ये तो पता होता है, हम जो है सन की मूवमेंट देखते रहते हैं कि सन अभी जो है ईस्ट डायरेक्शन में था, धीरे धीरे वो इस तरह से आपका जो है मूवमेंट कर रहा है और वो वेस्ट डायरेक्शन में जाके आपका जो है आपका सेट हो जाता है. लेकिन अगर हम एक कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्चुअल में आपका सन मूवमेंट नहीं कर रहा. मूवमेंट कौन करता है बेटा? आपका अर्थ. हमारी जो अर्थ होती है इट कॉन्स्टेंटली इन दी मोशन, ये कॉन्स्टेंटली आपकी मोशन में रहती है. व्हेन द सन disappear we say that sunset, while when it emerges we say that the sun rises. तो इस मोशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी आपकी अर्थ का एक पार्ट सन के सामने आता है और कभी एक पार्ट सन से दूर चला जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको ये महसूस होता है कि सन राइज हो रहा है या सन सेट हो रहा है. वी आर नॉट द लीस्ट अवेयर दैट द सन इन एक्चुअल डज नॉट राइज और सेट. लेकिन अगर हम एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, सन जो है ना कभी राइज होता है और ना ही कभी सेट आपका होता है. यानी कि ना सन आपका जो है राइज हो रहा है और ना ही सेट हो रहा है. इट इज वी हु राइज एंड सेट. जबकि ये तो हम लोग होते हैं जो राइज हो रहे हैं और सेट हो रहे हैं. यानी कि हम लोग जो हैं मोशंस ऑफ द अर्थ की वजह से एक बार जो सूर्य के सामने आ जाते हैं और दूसरी बार जो है सूर्य के सामने से दूर चले जाते हैं. इनफैक्ट सन इज स्टेशनरी और स्टैटिक. एक्चुअली जो आपका सन होता है वो आपका स्थिर होता है, एक जगह पे है बेटा सन आपका. एंड अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली. और रोटेट कौन करता है बेटा? घूमता कौन है? हमारी अर्थ उस सूर्य के चारों ओर घूमती है. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर also that the earth is a planet which moves around the sun. आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आपकी जो अर्थ है इट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ और एलोंगेटेड पाथ दैट इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ.
यानी कि सन आपका एक जगह पे स्थिर है और उसके चारों ओर आपकी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, वो आपकी जो है रिवॉल्व करती है, मूवमेंट उसकी होती है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहें कि सन एक ही जगह पे कैसे स्थिर है, तो हम इसका जो है एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन, while seeing outside you will observe that the things and feature outside the train seems to be moving in the opposite direction, but in reality the features and things outside the train are static while the train is moving। यानी कि जब हम ट्रेन से सफर करते हैं और बाहर की ओर देखते हैं तो हमको ये लगता है कि बाहर की जो वस्तुएं हैं जैसे कि पेड़ पौधे हैं या कोई और वस्तुएं हैं वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको जाती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो घूमती हुई दिखाई देती है, आपको मूव करती हुई दिखाई देती है, जबकि वो तो अपनी जगह पे स्थिर होती हैं। मूव कौन क्या कर रही होती है बेटा? ट्रेन मूव कर रही होती है। तो इन दी सेम मैनर सन आपका एक जगह पे स्थिर है, मूव कौन करता है बेटा? आपकी अर्थ करती है। सो इन द सिमिलर वे वी आर मूविंग विद आवर अर्थ। जिस तरह से हम ट्रेन का एग्जांपल हम लेते हैं कि ट्रेन आपकी मूव कर रही है, पेड़ पौधे अपनी जगह पे स्थिर है, जबकि हमको दिखाई क्या देता है कि पेड़ पौधे मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही हमको आकाश में जब हम देखते हैं हमको दिखाई देता है, एक बार सन आपका इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, फिर वो घूमता हुआ ऐसे आपका शाम को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आपका चला जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सन अपनी जगह पे स्थिर है और अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है, मोशंस में होती है। एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, ईच प्लैनेट हैज टू मोशंस and the earth in the same manner has also the two motion, that is the rotation and revolution. So my dear student, we are going to discuss in this chapter about the rotation and revolution. Let's have a quick recapitulate about the rotation and revolution. What is the rotation and what is revolution? The spinning of the earth, or you can say that the continuous spinning of the earth on its axis from west to east is called rotation। यानी कि अर्थ जब है एक एक्सिस अर्थ का होता है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट एक्सिस, सो दैट इज नोन एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड अर्थ always rotate from west direction to east direction। कैसे रोटेट करती है? west to east आपकी जो है रोटेट करती है। जबकि जो आपकी रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन क्या होता है बेटा? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इन ए फिक्स पाथ और ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। यानी कि जब आपकी अर्थ जो है, जैसे कि ये अर्थ का एक्सिस मान के चलें और इस एक्सिस पर जो है आपकी बाय द वे ये अर्थ है, ये अर्थ आपकी जब ऐसे आपकी रोटेट कर रही होती है बेटा, इस तरीके से जब आपकी अर्थ रोटेट करेगी तो ये जो रोटेशन है बेटा, दिस रोटेशन इज नोन एज, दिस movement is known as the rotation of the earth, and this movement occur from west to east direction। ये हमेशा आपकी west to east direction में आपकी होती है। यानी कि ये जो मेरी फिंगर है ये उसका एक्सिस है और इस एक्सिस के चारों ओर अर्थ जो आपका चक्कर लगा रही है, स्पिनिंग कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट आपकी होती है। जबकि अगर हम ये मान के चलें कि आपका जो है ये सन है, ये आपका सन है और यहाँ पे जो है आपका जो है ये अर्थ है, तो ये अर्थ जो आपका इस सन के चारों ओर जब चक्कर लगाएगी बेटा, इसको हम बोलेंगे, और ये एक फिक्स पाथ में लगाएगी, इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब आपकी अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। यानी कि अर्थ पर जो आपका घूमती है तो वो आपकी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा आपका करती है अराउंड द एक्सिस, जिसकी वजह से आपका क्या बनते हैं बेटा? डे एंड नाइट। क्या बनते हैं बेटा? आपके
डे एंड नाइट। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या चीज फॉर्म होती है बेटा, डे एंड नाइट। जबकि जो रेवोल्यूशन होता है, यानी कि जब अर्थ आपके सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सो इट टेक्स 365 एंड 1/4 डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। यानी कि सूर्य के चारों ओर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ जो है 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम जो है लेती है। तो इसकी वजह से क्या बनते हैं बेटा, आपका सीजन्स फॉर्म होते हैं। रेवोल्यूशन की वजह से क्या चीज फॉर्म होती है बेटा, आपकी सीजन्स आपके जो है फॉर्म होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द rotation of the earth. What do you mean by rotation of the earth, and what is the importance of rotation of the earth? Rotation, as you are aware my dear student, the spinning of the earth on its axis from west to east, that is known as the rotation. So जब रोटेशन आपका होता है उसकी वजह से डे एंड नाइट आपके बनते हैं। उसके और दूसरा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ और इन ऑर्बिट, दैट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। तो हम सब यहाँ पे करने वाले हैं बेटा ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि अर्थ जब सूर्य के चारों ओर, ये सन आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, जब इस सन के चारों ओर आपका चक्कर लगाती है तो एक फिक्स पाथ में लगाती है, तो वो जो अर्थ का पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ऑर्बिटल प्लेन। ये आपका जो है पूरा सर्कल में नहीं होता बेटा, ये एलोंगेटेड होता है, यानी कि जैसे एग होता है आपका उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप जो डॉट डॉट वाली लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय द अर्थ ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि अर्थ जिस रास्ते पे घूमती है, जो रास्ता वो बनाती है, यानी कि ये रास्ता जो वो बना रही है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, अर्थ का जो एक्सिस होता है, जो उसकी एक इमेजिनरी लाइन होती है, मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है बेटा। तो यह ऑर्बिटल प्लेन जब आप देखोगे, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन होगा, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन होगा, ये आपका जो एलोंगेटेड पाथ में होगा। तो अगर आप इस प्लेन से, यहां इस प्लेन एरिया से आप देखें तो ये 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। हैव ए लुक थ्रू दिस डायग्राम बेटा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। हैव ए लुक ऑन दिस डायग्राम। सपोज दिस इज अवर अर्थ, ओके। तो अर्थ जो है आपकी एक एलोंगेटेड पाथ में ऐसे आपकी जो है मूव करती है अराउंड द सन। तो अगर हम एक सिंपल सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा आपका जो है, आपका ऑर्बिटल प्लेन, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन बनता है बेटा, जो सेंटर में आपको ये डॉट वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। यानी कि ये अर्थ ऑर्बिट जो है ये प्लेन एरिया आपका फॉर्म कर रही है। और अगर आप इस लाइन को देखें, ऊपर की लाइन को देखें बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल आपका बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये जो आपकी सीधी लाइन है, ये वर्टिकल जो लाइन है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, ये लाइन हमने यहां से निकाली। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर बेटा इस वर्टिकल लाइन के आप जो है राइट हैंड साइड में देखेंगे, कौन सी साइड में देखना है आपने, राइट हैंड साइड में। कौन सी साइड में देखना है बेटा, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्बिटल प्लेन के अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक आपकी अर्थ जो है 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बेटा, 23.5 डिग्री। कितना एंगल बना रही है बेटा, 23.5 डिग्री का एंगल जो है वो आपका जो है बेटा अर्थ जो है आपका बनाती है। तनिष्का समझ में आ रहा है बेटा, आर यू अंडरस्टैंडिंग तनिष्का गर्ग? ओके बेटा, तो कितना एंगल बनाती है बेटा ये आपका 23.5 डिग्री का एंगल आपका बनाती है बेटा। कहां से, इस वर्टिकल लाइन से। कहां से बनाती है बेटा, फ्रॉम द वर्टिकल लाइन इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड। लेकिन अगर आप इस ऑर्बिटल प्लेन के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कितना एंगल बनाती है बेटा आपका 66.5 डिग्री। और अगर ये टोटल आप देखें तो 66.5 डिग्री प्लस 23 आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका बनाती है।
तो यानी कि जो आपका अर्थ का ये जो एक्सिस है, ये जो एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, ये टोटल एंगल आपका कितना बनाती है बेटा 66.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन पे कितना बनाती है बेटा आपका ये 66.5 डिग्री। यानी कि अर्थ का जो एक्सिस है इट इज टिल्टेड, टिल्टेड मींस झुका होना। अर्थ का जो एक्सिस है वो आपका टिल्टेड है, झुका हुआ है। कितने एंगल पर 66.5 डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर झुका हुआ है बेटा ये आपका 66.5 डिग्री एंगल पर ये आपका झुका हुआ होता है। तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें आर द एक्सिस ऑलवेज रिमेन द सेम। ये हमेशा आपका ऐसे ही रहेगा बेटा। अर्थ रोटेट करे, रिवॉल्व करे, कुछ भी करे, आपका एंगल जो है सेम रहेगा। द टिल्ट ऑफ 23 राइट फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, अगर आप वर्टिकल प्लेन से देख रहे हैं तो ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। और अगर आप इसको ऑर्बिटल प्लेन से देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं, तो ये 66.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। इट नेवर चेंजेस, ये कभी भी चेंज आपका नहीं होता है। सो द एंगल ऑफ द अर्थ एक्सिस फॉर्म द 66.5 डिग्री। कितना एंगल बनाता है बेटा आपका 66.5 डिग्री। राधिका कितना एंगल बनाता है बेटा आपका 66.5 डिग्री बनाता है। Now, as we are going to we are discussing the rotation, as I told you, the spinning of the Earth on its axis from west to east direction is known as the rotation. The Earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. यानी कि अपने एक्सिस के चारों ओर पूरा एक रोटेट करने में, एक चक्कर लगाने में अर्थ जो है कितना टाइम लेती है बेटा 24 आवर्स का टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है बेटा 24 आवर्स का टाइम लेती है। दिस पीरियड इज नोन एज अर्थ डे। इसको हम क्या किस चीज का नाम देते हैं बेटा अर्थ डे। किस चीज का नाम देते हैं अर्थ डे का नाम देते हैं। एक साल में 1 ईयर में कितने अर्थ डे होते हैं बेटा 365। कितने होते हैं बेटा 365। एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा 365। तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो उसको हम जो है अर्थ डे के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जो 12 घंटे का दिन है 12 घंटे की रात है, ये आपके लैटिट्यूड पे भी आपका अलग अलग इंपैक्ट डालती है। कैसे डालती है वी विल डिस्कस इन दी रेवोल्यूशन। ओके, the earth is spherical in shape, as you are aware earth is spherical in shape, so only half of it get light from the sun at a time. तो अर्थ जब स्पेरिकल इन शेप है तो अर्थ का केवल ये आप यहाँ पे देखें बेटा, जो पार्ट आपका सन के सामने होगा उस पार्ट पे ही लाइट पड़ेगी आपकी। तो आधी अर्थ के ऊपर आपकी लाइट आती है और आधा आपका अंधकार में रहता है, डार्क में रहता है। तो केवल एक टाइम में हाफ पार्टी जो आपका अर्थ का होता है इट गेट दी सनलाइट। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन, वो हिस्सा जो सन के सामने होता है वो किस चीज को एक्सपीरियंस करेगा डे को, वहां पे दिन होगा। वाइल दी हाफ अवे फ्रॉम द सन, और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, जो सूर्य के प्रकाश से दूर होगा, वहां पे क्या होगा बेटा नाइट होती है। इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ आपकी रोटेट ना करे, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन would always experience day and it would be continuously warm। यानी कि यहाँ पे ये एक कंडीशन बता रहे हैं बेटा, what would happen if earth not rotate, कि अगर अर्थ आपकी रोटेट ना करे तो क्या होगा बेटा, क्या हो सकता है, क्या होगा बेटा कि आपका अर्थ का वो पार्ट जो आपका सन के सामने है कॉन्टिन्यूसली लाइट को गेन करेगा, और लाइट को अगर गेन करेगा तो वहां पे जो है आपका जो है दिन ही रहेगा और वो धीरे धीरे आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस नाइट, और जो दूसरा हिस्सा होगा जो सन से दूर होगा वहां पे क्या रहेगा बेटा रात ही रहेगी। इट वुड वेरी कोल्ड इन दिस रीजन, तो धीरे धीरे ये आपका और ठंडा होता जाएगा
और बहुत ठंडा रीजन आपका ये हो जाएगा, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। दोनों ही कंडीशन में आपकी लाइफ नहीं रहेगी। यानी कि जो अगर बाय द वे अर्थ आपका रोटेट करना बंद कर दे तो जो हिस्सा सन के सामने है वो कॉन्टिन्यूस जो है सन की लाइट को गेन करेगा, धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और वहां से पे जो है लाइफ पॉसिबल आपकी नहीं होगी, यानी कि लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ऐसे ही जो हिस्सा आपका सन से दूर होगा वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ठंडा एनवायरमेंट आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस आपकी हो जाएंगी और वहां पे भी जो है आपकी जो है लाइफ सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ के लिए आपका जो है एक मीडियोकर टेम्परेचर चाहिए होता है जो आपका जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से बना रहता है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे बेटा तो आपका जो है लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं होगी। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ का पार्ट आपका सन के सामने होता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस द डे एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस द नाइट। तो क्या होता है कि एक टाइम में अर्थ का आधा हिस्सा ही आपका जो है सन के सामने होता है। तो आपका जो है एक लाइन जो आपकी एक सर्कल जो आपका जो है डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट, कि कहां पे आपका दिन है कहां पे आपकी रात है, ग्लोब के ऊपर अर्थ के ऊपर जो सर्कल आपका डे को नाइट से अलग करता है वो इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसको हम किस चीज का नाम देते हैं बेटा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डज द सर्कल डज नॉट that is known as the circle that divide the earth from night on the globe is called the circle of illumination, and the circle does not coincide with the axis। यानी कि जो आपका सर्कल होता है ये आपका एक्सिस के साथ जो है इसका कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हैव ए लुक हियर। अब आप यहाँ पे देखें बेटा, दिस इज अवर सन, दिस इज अवर अर्थ। ये आपके बेटा आपका एक्सिस है अर्थ का जो आपका टिल्टेड मैनर में है। कितने डिग्री एंगल पे आपका टिल्टेड है, 66.5 डिग्री पे। अब आप देखेंगे कि आपका जो पार्ट सन के सामने है इट एक्सपीरियंस द डे। येलो पार्ट आप देखें बेटा, इट एक्सपीरियंस द डे, ये आपका डे को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये डे को जब एक्सपीरियंस आपका कर रहा है, आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट जो है आपका जो है इस एक्सिस से आगे चला गया है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ पार्ट जो है इस एक्सिस से पीछे है। यानी कि आपका जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि ये जो लाइन है दिस इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। इसका एक्सिस का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हाफ पार्ट आपका हमेशा सन के सामने रहता है और हाफ पार्ट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन, और हाफ पार्ट हमेशा आपका सन से दूर रहेगा। तो इस प्रकार से बेटा आपका जो है इस प्रकार से आपकी रोटेशन का फर्क पड़ता है। सो टुडे वी डिस्कस about the rotation of the earth. My dear student, as you are aware, what do you mean by rotation of the earth? The spinning of the earth on its axis from west to east is known as the rotation of the earth. And earth complete one rotation in 24 hours, and due to the rotation our day and night forms. As our day and night forms, so earth complete one rotation in 24 hours, that time is known as the earth day। यानी कि 24 आवर में जो आपकी अर्थ जो है वो एक आपकी रोटेशन को कंप्लीट कर रही है, तो उसको हम जो है अर्थ डे के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बेटा अर्थ के ऊपर आपका एक सर्कल आपका जो है हमने इमेजिन किया हुआ है कि हम ऐसा मानते हैं कि आधा पार्ट अर्थ का सन के सामने रहता है और आधा पार्ट आपका सन से दूर रहता है। तो आधा पार्ट जो है जो आपका जो है डे को नाइट से अलग करता है, दैट इज नोन एज सर्कल ऑफ
इल्यूमिनेशन। ऐसे ही हमने ये डायग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट 66.5 डिग्री। ओके, so this is enough for today. Tomorrow or in the next lecture we will discuss about the revolution of the earth. So my dear student, this is enough for today. If you have any question, any doubt, you can ask me now. Beta, time is over. Thank you. Have a nice day. If you